Hello, good evening all. My name is Arvind. I have done my bachelor's degree from civil engineering, IIT Kanpur. I am currently working as an assistant executive engineer in roads and buildings department of Andhra Pradesh. And I have secured an All India rank of 41 in GATE 2021 and an All India rank of 91 in GATE 2020. And I have cracked the APPSC AEE examination, which I am currently enrolled in. Please join us on our Telegram channel, that is Unacademy MyGate CE. Here you can avail the notifications about the upcoming video lectures on YouTube regarding the revision part and problem solving part and all. And you can also avail the preparatory material for GATE for some particular concepts and all. And here are our Unacademy packages. The first one is Plus subscription, in which you can have access to the live classes which are taught by the top educators, and you will be having weekly tests regarding the syllabus which has been covered in your daily classes, and the courses were designed in a well structured manner in such a way that you can able to understand the concepts from basics to in-depth uh, in-depth. And there will be crash courses in which a subject is taught in a very brief manner in a short period of time. These were targeted for the purpose of your revision just before your examination, such as ESC and GATE. And there will be rank improvement matches where you will be solving n number of questions uh, in a way to improve your performance for the upcoming examinations. And there will be unlimited access for all these. If you move to the bigger picture, that is Iconic, here you will get a personal coach with whom you can have one-on-one guidance on preparation strategy, and he will be your study planner, and he will customize your study plan in such a way that you can maximize your output in your free time available. And there will be study booster sessions. You can receive essential guidelines via regular workshops and all, and there will be personalized test analysis to get in-depth analysis of tests by section and question type. There will be preparatory study material that is specialized notes, practice sets and all, and there will be dedicated doubt clearing sessions by top educators for yourself. You can all avail these in Iconic subscription. Okay, here are our special class features. There will be live and interactive classes. You can attend live classes, participate in the live chat and get your doubts cleared all during the class hours itself. There will be polls for the learners. Respond to the polls for a better understanding of the topic. There is a raise a hand option. Talk to your educators in live classes and get your doubts resolved in real time. Never miss a class by pushing the bell icon. That is, you will be get notified before every class, so that you can cover your syllabus. And there will be lecture notes available. You can download the notes and get access to the recorded sessions of live classes also, which you can rewind many number of times as you want. If you are supposedly stuck at a difficult concept, or you aren't unable to attend the particular part and all, and next you can attend this from anywhere and anytime. And check out our new Unacademy Ask Edward feature for faster way to solve the doubts of the students. Here are the new things regarding this, designed for the purpose of GATE and ESC. Upload while your question being solved, you can upload up to 2 additional doubts, so that makes that you can ask 3 questions at a go. And you can get the solutions in preferred language, as you've seen below. You can get it in Hindi, English, or combine both. And how to do it? You just click the question in which you have difficulty in finding solving, and crop the image and just submit in the platform. Okay. Regarding the live mentoring product, there will be one-on-one live mentoring with the new Iconic subscription. You can experience the personalized learning with our expert mentors. Discuss your doubts, clarify your concept, and enhance your exam strategy with just a click. And here are our Unacademy subscription plans. For Plus subscription, you can avail it for 2,704 rupees per month. For Iconic subscription, you can avail it for 4,704 rupees per month. If you are going for a 24 months, this is well suitable
if you are in third year or fourth year of your college, so that you can't dedicate your complete time your preparation. In that point of view, this will be the very optimum, so that covered is syllabus is covered in a very uniform pace, in a slow manner, and the additional benefit also, there will be no pressure to complete the syllabus before the examination. So everything will be covered at a uniform phase, so you can cover everything before the exam, and there will be ample and a good amount of time for your revision. For 24-month plan, you can just avail it for 1967 rupees per month. This is cheaper than the 12-month subscription. In the Iconic, you can get it for 3467 rupees per month. Please use the code ARVD10 to avail 10% additional discount. There are already my special classes uploaded on the Unacademy platform regarding the preparation for GATE in transportation engineering and soil mechanics. There is our new batch which is started recently for GATE ESC and GATE and ESC 2023. Remember, this is for year 2023. That is, there is one for the not this year, for the upcoming version of the GATE and ESC examination, and this will be taught in bilingual language, and this is for civil engineering. The batch code is batch U, and these were taught by these top educators. This has started from 15th December, that is just a couple of weeks ago, and this is started with the strength of materials by Shobhit Srivastava sir. And there is one more important notification regarding a All India mock test series for GATE 2022. Here, the full-length mock test for GATE 2022 will start on January 2nd. And one more important thing, this is absolutely free, so anybody can attempt. आप ट्राई कीजिए अटेंड करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग डरते हैं मेरा इतना सिलेबस बच गया, उतना सिलेबस बच गया, पूरा कंप्लीट करने के बाद एग्ज़ाम देता हूँ। आप ये बात ध्यान में रखिए, आपका जो टेस्ट सीरीज में स्कोर है वो इतना मैटर नहीं करता, आपकी जो फाइनल एग्ज़ाम की स्कोर है वो बहुत रिफ्लेक्ट करता है। अब फाइनल एग्ज़ाम स्कोर आपको इम्प्रूव करने के लिए जितना आप टेस्ट सीरीज ज़्यादा देंगे उतना आपके फ़ायदा होगा। मैं भी वो फियर फेस किया था, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा कंप्लीट करने के बाद देता हूँ। आप उससे एक सेटिस्फैक्शन होता है, आपको पूरा कंप्लीट हो गया तो थोड़ा टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर होगा मेरा, थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, वो मत सोचिए। आप जब टेस्ट सीरीज देते हो, ज़्यादा नंबर आ गया तो अच्छा है, कम नंबर आ गया तो आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप देख लीजिए, अपने टेस्ट सीरीज में जिस टाइप का क्वेश्चन आप गलतियाँ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स होता है। एक होता है आपने जो पोर्शन छोड़ दिया, रिवीजन का सोच रहा है या पहली बार भी नहीं पढ़ा, उस पोर्शन से आ गया, वो क्वेश्चन का आप कुछ नहीं कर सकते। एंड एक और होता है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स, आप उसने थोड़ा पढ़ लिया था लेकिन इतना क्लैरिटी नहीं हुआ, उस क्वेश्चन का आप कंफ्यूजन है, मतलब इसमें थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है कि दो तीन डिफरेंट तरीका है, उसमें एक सही एक एक उसका सॉल्यूशन हो सकता है, एंड आप श्योरिटी नहीं है उसको सॉल्व करने के लिए, ऐसा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। एंड एक और बात होता है कि जब आप कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट आता है आपको, लेकिन लास्ट स्टेप में थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा नहीं होता है इसको इस तरीके करना है या इस तरीके करना है। मतलब जैसा मान लो कि साइन कन्वेंशन का आप थोड़ा वीक है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, एंड फार्मूला का जो यूनिट्स होता है वो आप अच्छे से ध्यान नहीं दिया। सो ऐसा जो छोटे छोटे आपका जो वॉइड्स होता है वो सब कवर हो जाएंगे अगर टेस्ट सीरीज देके आप उस क्वेश्चन को जब रिविजिट करोगे, आपको अच्छे से याद होगा। जब टेस्ट सीरीज में जो गलतियाँ करते हैं ना, वो आपको थोड़ा वो एक्स्ट्रा स्ट्रांगली आपके माइंड में हो जाएंगे, क्योंकि आप उसकी वजह से आपका जो रिजल्ट हुआ था रिलेटिवली वो इफेक्ट हुआ था। सो दैट विल बी रिमेंबर्ड रेदर देन यू आर जस्ट सॉल्विंग इट ऑन ए नॉर्मल लेवल। आप जो प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको कंफ्यूजन की वजह से नहीं हुआ, लेकिन आप आंसर देख के आपको लग गया कि अच्छा इधर मैंने साइन का कुछ चेंज किया, इसके वजह से गलत हुआ, लेकिन आप बाद में वो भूल जा सकते हैं। लेकिन ऐसा मिस्टेक आप टेस्ट सीरीज में फाइंड आउट करते हैं ना, वो आपको स्ट्रांगली मेमोराइज हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से आप थोड़ा रियली इफेक्ट देखते हो, कितना नंबर फ़र्क पड़ा मुझे बाकी लोगों से, तो इसकी वजह से मेरा रैंक कितना नीचे हुआ। सो
ये सब आपको टेस्ट सीरीज में पता चलेगा। एंड आपको एक और चीज़ होता है, सिली मिस्टेक्स होता है। आप कभी कभी कैलकुलेशन गलतियाँ कर लेते हो छोटी छोटी, लेकिन आपको नहीं पता होता है। जब आप प्रैक्टिस करते हो ये सब नहीं होता, लेकिन जब टेस्ट सीरीज उस एनवायरनमेंट में देते हो उस टाइम आपसे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, जो क्वेश्चन आता है वो नहीं कर पाता है आप, ऐसा हो जाता है, ये सब भी नोटिफाई होता है। तो आपको ये मत सोचना है कि आप पूरा कंप्लीट करने के बाद ही टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना है। अ, अब जितना भी सिलेबस किया हो, एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट भी गया हो, अटेम्प्ट कीजिए टेस्ट सीरीज। उससे आपको खाली कॉन्सेप्ट्स नहीं, जितना द अमाउंट ऑफ सिलेबस यू कवर, खाली वो नहीं, आपका जो एक्यूरेसी है वो भी टेस्ट किया जाएगा, एंड आपकी क्लैरिटी है वो भी टेस्ट किया जाएगा, एंड आपके रिलेटिव परफॉर्मेंस का भी अंदाज़ा लगेगा। Okay, and the test series were created by top educators to cover the entire syllabus. You can experience the actual exam like setting, get your all India ranking. You can identify the areas of improvement with detailed analysis of video solution. आपको टेस्ट सीरीज के बाद एक आंसर की दिया जाएगी एंड उसके सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, उसके साथ साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। ओके, okay, once again, boost your readiness with our GATE Civil Engineering 2022 with our top educators. These were the educators who are setting the GATE test series full length. You can please enroll now. It is absolutely free. आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसकी एक और रीज़न होता है, जब फ्री होता है ना, बहुत लोग अटेम्प्ट करते हैं, देर विल बी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल बी रजिस्टरिंग फॉर दिस। सो आपको थोड़ा रिलेटिव कंपटीशन पता चल जाएगा आपको एक दो टेस्ट देने के बाद। एंड ओके, हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला है ईएससी का प्रीलिम्स जो है, उसमें पेपर 2 के बारे में बात कर रहे हैं, उसको हाउ टू अटेम्प्ट दी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज। देखिए, कुछ लोग जो पहली बार देख रहे हैं, मतलब अभी अभी नया आया है ईएससी या गेट तैयारी करने, उनको एक बार इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। ईएससी प्रिलिमिनरी जो है उसमें दो पेपर होते हैं। आपका पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ एंड दूसरा पेपर होता है प्योरली टेक्निकल। एंड जनरल स्टडीज़ में आपको आते हैं 10 सब्जेक्ट्स, एंड टेक्निकल में आप 13 सब्जेक्ट्स गिन सकते हो। ओके, टोटल पेपर 1 एंड पेपर 2 विल कंबाइन एट टोटल क्वेश्चंस ऑफ 250। ओके, पेपर 1 में मिलेंगे आप 100 क्वेश्चंस एंड पेपर 2 में आपको मिलेंगे 150 क्वेश्चंस। तो टोटल आपका हो गया 250, एंड आपका जो टाइम लिमिट होता है, पेपर 1 का 2 आवर्स होता है एंड पेपर 2 का 3 आवर्स होता है। आप इसमें देख सकते हो हर 50 क्वेश्चन का 1 घंटे दिया जाता है आपको सॉल्व करने के लिए। आप 1 घंटे के हिसाब से क्वेश्चन गिन रहे होते हो। एंड ईएससी का जो एग्ज़ाम है दैट विल टेस्ट योर स्पीड एंड मेमोरी मोस्टली। ये आपको पता चलेगा क्यों मैं मेमोरी बोल रहा था। एंड इसको आप ये तो मतलब अंदाज़ा लग सकते हैं, 150 क्वेश्चंस इन 3 आवर, मतलब 180 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चंस करना है पेपर 2 टेक्निकल में। ये इतना आसान नहीं है। अगर आपको अच्छा स्कोर आने के लिए, अगर मान लो कि आपने सिलेबस कवर कर दिया एंड आपको अच्छा स्कोर लाना है, फॉर दैट यू हैव टू अटेम्प्ट 120 क्वेश्चंस। तो जनरली जो टॉपर्स होते हैं या प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर करते हैं, उनका जो एवरेज नियरली होता है अराउंड 120 क्वेश्चंस। अगर पेपर इज कम एट ए मीडियम और समवॉट इजी लेवल, अगर इजी मतलब मान लो कि एवरेज लेवल पे आ गया, तो अच्छा स्कोर जिनका आता है उनका एवरेज अटेम्प्ट होता है 120 क्वेश्चंस। ओके, एंड इसमें हम देखते हैं कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले आप पेपर रिसीव करने के बाद एक बार आपको पेपर चेक करना है, मतलब सारे के सारे पेजेस आप पलट के देख लीजिए आपके सारा जो पेपर है वो प्रिंट हुआ है कि या नहीं। ओके, उसके बाद हम शुरू करते हैं। अब देखना कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, एंड पेपर आप मान लो कि पूरा चेक किया, मोस्टली आपका पेपर जो है वो एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली कुछ मिस्टेक्स नहीं होंगे, वो लोग ध्यान से देते हैं तो यूपीएससी वाले। सो यू विल फाइंड इट मोस्टली गुड टू गो। एंड आपको आप ये ध्यान में रख लिए, आपको जब भी पेपर देता है उसको शुरुआत से नहीं, मतलब हर एक क्वेश्चन सिक्वेंशियली नहीं करना है।
ओके, ये आप ध्यान में रख लीजिए। गेट में इससे इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें आपको करना होता है 65 क्वेश्चंस एंड आपको टाइम दिया जाता है 3 आवर्स, सेम अमाउंट एज इन ईएससी। तो आपको 180 मिनट्स में 65 क्वेश्चंस करना है। अगर आप एवरेज में मान सकते हैं 3 मिनट मान सकते हैं एक एक क्वेश्चन का, क्योंकि उसमें 5 क्वेश्चन तो वही होता है वोकेबलरी इंग्लिश वाला। तो गेट में अगर आप सीक्वेंस कर रहे हैं, मतलब बीच में आपको लेंदी क्वेश्चन दिख गया, उसको आपने थोड़ा 5-6 मिनट दे के अटेम्प्ट कर दिया, उसमें बाकी क्वेश्चन में इतना असर नहीं पड़ता क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं इजी क्वेश्चंस होते हैं, आधा लगभग। सो आपको उसमें इतना नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन ईएससी में जो है इसमें आपको होता है 150 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स। ओके, मतलब आप एवरेज किया तो हर एक क्वेश्चन का आपका एवरेज मिलेगा 1 मिनट 12 सेकेंड्स। ओके, आपको क्वेश्चन पढ़ने में ही 10 से 20 सेकंड लग जाएगा। अगर वो न्यूमेरिकल है तो आप उसके बाद उसको एनालाइज भी करोगे तो उसका उधर ही आपका 40 सेकंड चला जाएगा। सो आपको सिक्वेंशली अटेम्प्ट करना, ये आइडिया आपके दिमाग से हटाना है। ये आपको बस ऐसा सुनने में आदत नहीं आएगा। जब आप टेस्ट सीरीज देते हो, इसका भी टेस्ट सीरीज आएगा अकेडमी में, जब आप टेस्ट सीरीज में एनरोल लेते हो आपको इस मेथोडोलॉजी उधर इम्प्लीमेंट करना है। एक ही बार में आपको पूरा स्ट्रेटजी बदलना मुश्किल है, लेकिन आप धीरे धीरे आदत कर सकते हैं। देखिए, आप कोई भी एग्जाम में आपकी मार्क्स लाने के लिए पहला आपका होता है कि आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। मतलब आपको क्लास सुनना चाहिए, नेक्स्ट क्लास में जब जो आपने सुना था उसके नोट्स बनाना है। ये सब प्रिपरेशन पार्ट में आता है। प्रिपरेशन पार्ट में आप करते हैं क्लास अटेंड करते हैं, नेक्स्ट उसके रिलेवेंटली नोट्स बनाते हैं, एंड उसके बाद आप क्या करते हैं, क्लास के बाद उस नोट्स को पढ़ते हैं फिर से रूम आने के बाद या घर आने के बाद। एंड इसके बाद आपको करना है प्रीवियस ईयर, कोई भी एग्ज़ाम के लिए उसके प्रीवियस ईयर करना मैंडेटरी होता है। उसी से आपका अंदाज़ा लगेगा कि एग्ज़ाम किस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप के सवाल पूछ रहा है। आप देख सकते हैं गेट और ईएससी में जो टॉपिक्स है वो सिमिलर होते हैं 80%। ईएससी में थोड़ा ज़्यादा एडिशनल होता है, लेकिन उसमें द वे दे आस्क द क्वेश्चंस that is completely different. In ESC, they will check your speed, uh, speed and the where vast amount of syllabus. इन गेट में ऐसा नहीं होता। आप गेट में आपकी एक्यूरेसी टेस्ट किया जाती है। आपसे आपके टाइम बहुत ज़्यादा देंगे लेकिन क्वेश्चंस कम होते हैं, तो आप जितना एक्यूरेट रहेंगे उतना अच्छा रैंक होगा आपका। ईएसए में ऐसा नहीं है, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, आपका पहले पार्ट हर एक स्टूडेंट करता है। जो भी लोग एग्ज़ाम देते हैं सीरियसली, हर एक स्टूडेंट प्रिपरेशन मतलब 100% करता है। लेकिन नेक्स्ट पार्ट आता है उसकी, हाउ दे बिहेव ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस। ओके, कुछ लोग घबरा जाते हैं, उसकी वजह से जो क्वेश्चन उनको आता है वो छूट जाता है। वो नहीं करना है। वो आपको वही टेस्ट सीरीज के हिसाब से आपको इम्प्रूव करना होगा। वो मेनली आप पे प्रेशर पड़ता है जब आप सिक्वेंशली कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन आपने देखा था, वो आपने थोड़ा बहुत टॉपिक छोड़ दिया, उसी से आ गया, या वो आपको थोड़ा मुश्किल लगा। हाँ, लोग घबरा जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब प्रीलिम जो है उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है। तो आपको एक चीज़ पहला करना है कि आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ना है। ओके, ठीक है, पढ़ने में टाइम लगेगा लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ना है। एंड ना जब आप वो तरीका देखते कैसे करते हैं, यहाँ पे आराम से करता हूँ मैं, लेकिन एग्ज़ाम में आप इसी मेथड अप्लाई कीजिए। आपको पहली बार में शायद लगेगा कि थोड़ा ये भी लेंदी जा रहा है, लेकिन जब आप धीरे धीरे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करोगे तब तक आपका जो एक्यूरेसी भी बढ़ेगा, मतलब एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, एंड आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हो वो भी बढ़ेगा। ओके, पहले आपने पेपर पूरा देख लिया एंड आपको अटेम्प्ट करना है पहले थ्योरी वाला पार्ट। ओके, आपको न्यूमेरिकल नहीं टच करना है, पहले आपको अटेम्प्ट करना है थ्योरी क्वेश्चंस खाली। इसमें
आपको इधर हमने देखा था कि ईएससी जो है, प्रीलिम्स जो है, उसमें पूरा 150 क्वेश्चंस होते हैं, एंड पहले हम काउंट करेंगे इसमें थ्योरी क्वेश्चंस कितना है। ओके, इसको कैसे करना है, पहले बार मैंने देखा था ना, पहले स्टेप जो होता है उसको आप पेपर को पलट के देखना है, पूरा 150 क्वेश्चंस प्रिंटेड है कि या नहीं। उस टाइम आप पेपर देखते हो, आप ऑप्शंस आइडेंटिफाई करना। देखिए जिस जिस ऑप्शन में न्यूमेरिकल नहीं है वो सब थ्योरी का होता है। आपको साइड में लिखना है, क्वेश्चन के साइड में कुछ आप जो भी सिंबल बना रहे हो मार्क करो। मैंने उसको टी से मार्क करता था, थी मतलब टी मतलब थ्योरी। यहाँ पे हम ओवरऑल पेपर के थ्रू जाएंगे, एंड यहाँ पे साथ के साथ गिनेंगे कि थ्योरी क्वेश्चंस कितना है। ओके, ये आपका लेटेस्ट ईएससी प्रीलिम्स का पेपर है 2021, डाउनलोडेड फ्रॉम यूपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, यहाँ पे चले देख लेते हैं। पहले आपको थ्योरी करना है, थ्योरी कितना क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं इधर। देखिए न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 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 6 न्यूमेरिकल 7 न्यूमेरिकल 8 न्यूमेरिकल, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट पेपर में जाइए, 9th न्यूमेरिकल, 10th न्यूमेरिकल, 11th न्यूमेरिकल, 12th न्यूमेरिकल, 13th न्यूमेरिकल, 14th न्यूमेरिकल, 15th न्यूमेरिकल। 16 थ्योरी है, एक क्वेश्चन हो गया। 17 थ्योरी है, 2। 18th न्यूमेरिकल, 19th न्यूमेरिकल, 20 न्यूमेरिकल, 21st फिर से थ्योरी आ गया। यहाँ पे पूरा 21 में आपको मिला है 3 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इस पेपर में देखते हैं। 22 थ्योरी है, इस पेज में एक्स्ट्रा एक आ गया। 23 थ्योरी, 24th न्यूमेरिकल, 25 थ्योरी, 26th थ्योरी, 27th थ्योरी, 28th थ्योरी, 29th थ्योरी, 30th इज आल्सो थ्योरी। इस पेज में आपको आया है 8 क्वेश्चंस, इसमें न्यूमेरिकल मिला है। सो टोटल अपना 30 में हो गया 10 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टिल नाउ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 31 थ्योरी, 32 थ्योरी, 33 न्यूमेरिकल, 34th थ्योरी, 35 थ्योरी, 36th थ्योरी, 37 न्यूमेरिकल, 38 न्यूमेरिकल। इस पेज में अपना थ्योरी मिला है 5 क्वेश्चंस। तो टोटल अब तक हो गया 15 आउट ऑफ 38। ओके, नेक्स्ट में जाते हैं। 39 न्यूमेरिकल, 40 न्यूमेरिकल, 40 थ्योरी, 41 न्यूमेरिकल, 42 न्यूमेरिकल, 43 थ्योरी, 44 न्यूमेरिकल, 45 थ्योरी। तो इसमें हुआ है 3 क्वेश्चन। सो टोटल अपना हो गया 18 क्वेश्चन आउट ऑफ 45, 18 क्वेश्चन आर थियोरिटिकल। अब आगे बढ़ते हैं। 46 थ्योरी, 57 थ्योरी, 48 सॉरी 46 एंड 47 न्यूमेरिकल, 48 थ्योरी, 49 थ्योरी, 58 थ्योरी, 51 थ्योरी, 52 न्यूमेरिकल, 53 थ्योरी। इस पेज में आपको 5 क्वेश्चन मिला है। तो टोटल आपको कितना हो गया कुल मिला के? पहले का आया था अपना 18 + 5, टोटल यहाँ तक हुआ था 23 आउट ऑफ 53। फिर आगे बढ़ते हैं। 54 थ्योरी, 55 थ्योरी, 56 थ्योरी, 57 न्यूमेरिकल, 58 न्यूमेरिकल, 59 न्यूमेरिकल, 60 थ्योरी। एंड इसमें इस पेज में आपको 4 क्वेश्चन थ्योरी मिला था, एंड टोटल अब तक हुआ है 27 क्वेश्चन पर फ्रॉम थियोरिटिकल पार्ट। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। 61st इज थियोरी, 62 is theoretical, 63 is theoretical, 64 is theoretical, 65 is theoretical। इस पेज में पांचों पांच theoretical क्वेश्चन। तो टोटल अब तक हो गया 32 theoretical आउट ऑफ 65। एंड 66 थियरी, 67 थियरी, 68 न्यूमेरिकल, 69 न्यूमेरिकल, 70 न्यूमेरिकल, 71 न्यूमेरिकल, 72 न्यूमेरिकल। इस पेज में दो ही आए थे। तो अब तक 34 क्वेश्चंस आर थियरिटिकल आउट ऑफ 72। 73 थ्योरी, 74 थ्योरी, 75 थ्योरी,
76 थ्योरी, 77 थ्योरी, 78 थ्योरी, 79 थ्योरी। इस पेज में अपना पूरा 7 क्वेश्चन है एंड सातों सात थ्योरेटिकल है। तो अब तक आया है 41 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 80 थ्योरी, 81 थ्योरी, 82 थ्योरेटिकल, 83 theoretical, 84 theoretical, 85 is numerical, 86 is numerical, 87 is numerical। इस पेज में 8 क्वेश्चन है एंड आउट ऑफ 8 5 आर theoretical एंड 3 आर numerical। सो टोटल अपना आया था 46 क्वेश्चंस वर theoretical एंड रेस्ट वर numerical आउट ऑफ 87। नेक्स्ट 88 theory, 89 sorry 88 numerical, 89 numerical, 90 numerical, 91 numerical, 92 numerical, 93 numerical। इस पेज में पूरा 6 क्वेश्चन है एंड पूरा 6 वाला न्यूमेरिकल है। सो अब तक अपना बना वही सेम 46 थियरिटिकल आउट ऑफ 93 क्वेश्चन। इधर 94 न्यूमेरिकल, 95 न्यूमेरिकल, 96 थियरिटिकल, 97 थियरिटिकल, 98 न्यूमेरिकल। तो इस पेज में 5 क्वेश्चन है, उसमें 2 थियरिटिकल एंड रेस्ट आर न्यूमेरिकल। अब तक अपना क्वेश्चन बने थे 48 और थियरिटिकल। नेक्स्ट इस पेज में देखते हैं 99 theoretical, 100 is theoretical, 101 is theoretical, 102 is theoretical, 103 is numerical। सो इस पेज में टोटल 5 क्वेश्चन है, उसमें 4 theoretical है। तो टोटल दैट मेक्स 52 theoretical आउट ऑफ 103 क्वेश्चंस। इस पर देखते हैं न्यूमेरिकल है 105 is theoretical, 106 is numerical, 107 is numerical, 108 is numerical। इसमें भी 5 क्वेश्चन है, उसमें एक ही थियरिटिकल है। सो टोटल अपना बना 53। नेक्स्ट 109 is theoretical, 110 numerical, 111 numerical, 112 theoretical, 113 theoretical। तो इस पेज में 5 क्वेश्चन है आउट ऑफ विच 3 वर थियरिटिकल। तो टोटल अपना बना है 56 थियरिटिकल आउट ऑफ 113। नेक्स्ट इस पेज में 114 थियरिटिकल, 115 न्यूमेरिकल, 116 थियरिटिकल, 117 थियरिटिकल, 118 न्यूमेरिकल। तो इस पेज में 5 क्वेश्चन है आउट ऑफ विच 3 वर थियरिटिकल। टोटल अपना है 59 आर थियरिटिकल क्वेश्चंस। इसमें देखते हैं 119 थियरिटिकल, 120 न्यूमेरिकल, 121 थियरिटिकल, 122 थियरिटिकल, 123 न्यूमेरिकल। यहाँ पे 5 क्वेश्चन इस पेज में भी आउट ऑफ विच 3 वर थियरिटिकल एंड 2 वर न्यूमेरिकल। सो टोटल अपना 62 क्वेश्चन थियरिटिकल मिला है अब तक 123 क्वेश्चन। नेक्स्ट 124 theoretical, 125 theoretical, 126 theoretical, 127 numerical, 128 theoretical, 129 theoretical, 130 theoretical, 131 theoretical। ओके, इस पेज में है 8 क्वेश्चन, उसमें से 7 क्वेश्चन थियरिटिकल है। टोटल अपना हुआ है 69 क्वेश्चन आउट ऑफ 131। एंड इस पे देख लीजिए 132 थियरिटिकल, 133 थियरिटिकल, 134 थियरिटिकल, 135 थियरिटिकल, 136 थियरिटिकल, 137 थियरिटिकल, 138 थियरिटिकल, 139 इज न्यूमेरिकल। तो इस पेज में है 8 क्वेश्चन, उसमें से भी 7 क्वेश्चन आर थियरिटिकल एंड जस्ट 1 इज न्यूमेरिकल। तो अब तक कितना बने थे टोटल 76 आउट ऑफ 139 क्वेश्चन वर थियरिटिकल। एंड इस पेज में आता है 140 जो है दिस इज थियरिटिकल, 141 इज थियरिटिकल, 142 थियरिटिकल, 143 थियरिटिकल, 144 थियरिटिकल। इस पेज में 5 क्वेश्चन है एंड पांचों के 5 थियरिटिकल है। टोटल अब तक हुआ है 81 क्वेश्चन आउट ऑफ 144। एंड ये जो पार्ट है असर्शन रीजनिंग है, उसमें मोस्ट मैक्सिमम आपको थ्योरी मिल जाएंगे। कितना बचा है 6 क्वेश्चन है, 145, 146,
147, 148, 149, 146, 6 और 6 थियरिटिकल है, सो टोटल अब तक 87। ओके, तो ओके, हमने पहला स्टेप किया था। पहले आप पेपर पलट रहे थे, हर क्वेश्चन प्रेजेंट है या नहीं। उस प्रोसेस में आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस मार्क करेंगे। आप खाली आपको क्वेश्चन प्रिंटेड हुआ है वो देखना है, उसके बाद आपको ऑप्शन देखना है। अगर ऑप्शन में उसका कुछ नंबर नहीं है, आपको उसको मानना है थियरिटिकल मार्क करना है। आप जो भी सिंबल यूज कर लीजिए थ्योरी के लिए। मैंने टी यूज करता था, बगल में लिख लेता था टी 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 लिख के थियरिटिकल में। तो आपका पहला स्टेप करना है, बस वही है, सी वेदर ऑल द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर प्रेजेंट एंड जस्ट use according to your own language nomenclature, just mark the questions which were theoretical। ना यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे जो मार्क करते हैं ना जो क्वेश्चंस, सब थियरिटिकल भी नहीं होता है। एक दो पूछता है कि उसने कुछ क्वेश्चन में न्यूमेरिकल ले देता है, उनकी इफेक्ट पूछता है नीचे। मतलब मान लो कि आपके फ्लूइड का कुछ क्वेश्चन दे दिया, वो देता है कि अगर डायमीटर डबल हुआ एंड अब डायमीटर हाफ हुआ, उसके इफेक्ट क्या है वो भी पूछ लेता है, इंक्रीजेस डिक्रीजेस या डबल्ड हाफ ऐसा कुछ दे देता है। ऐसा आपको दो तीन, ऐसा आप कुछ जब आप गिनते होते हैं उसमें 5 से 10% आपको, वर्स्ट केस में 10% दिखता है। मोस्ट प्रोबेबली बस 3 4 क्वेश्चन ऐसा ऑड टाइप के होते हैं जो न्यूमेरिकल है लेकिन ऑप्शन में थियरिटिकली पूछते हैं। ओके, एंड एक और बात होता है कि जो आपका ऑप्शन जो छोड़ रहे हैं आप, नीचे लिखा हुआ है, मतलब आप नंबर देख के उसको न्यूमेरिकल सोच के उसको स्किप कर दिया मार्क करने में। उसमें भी कुछ क्वेश्चन होता है कि स्पेसिफिकेशंस होते हैं। अगर मान लो कि आरसीसी हो गया और पूछता है कि M20 ग्रेड कॉन्क्रीट है, उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होता है, नीचे आंसर दिया होता है न्यूमेरिकल में, लेकिन वो वन वर्ड आंसर। थियरिटिकल का मतलब होता है कि वो डायरेक्ट आंसर, आपको कुछ पेन लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसको पढ़ के सॉल्व कर सकते हो तुरंत उधर। तो उनको पहले थियरिटिकल और न्यूमेरिकल मार्क करना है। एंड हम इसमें खाली सिम, यहाँ पे टाइम कम होती है, सो इसलिए आपको जल्दी जल्दी मार्क करना है वाइल यू आर वेरीफाइंग द क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन से थ्रू आइडेंटिफाई किया था। सो टोटल अपना थियरिटिकल क्वेश्चंस आया था 87, आउट ऑफ कितना है 150 क्वेश्चन है। ओके, आप इधर क्लियरली देख सकते हो 87 क्वेश्चंस वर थियरिटिकल एंड आउट ऑफ 150। 87 से अगर 150 निकाल कितना बचा है आपको, खाली 63 क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल है एंड 87 क्वेश्चन से 87 क्वेश्चन थियरिटिकल है। मतलब आप बिना उसको सॉल्व करके आंसर लगा सकते हो। अगर आप वो थोड़ा पढ़ा हुआ है उसका थियरी कुछ अगर आपको आता है तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। एंड जो 63 है इसी में आपके टाइम बर्बाद होगा। 63 में ऐसा आधा क्वेश्चन होता है जो ऐसा डिजाइन किया जाता है कि आप उस पर ज्यादा टाइम लगा जाए। और ये लोग क्वेश्चन ऐसा देता है कि वो क्वेश्चन आप किया हुआ ही होता है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक उसकी रिक्वायरमेंट होता है कैलकुलेटर जल्दी सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आपकी उसकी अलाउबिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है एंड अलाउबल भी नहीं है। तो आपका वो जो मतलब आपके जो मन में करता है कि ये हमने किया था इसको करना है, तो आप उस पर लगे रहते हो। आपको क्वेश्चन पढ़ने में ही 20 30 मिनट लग जाता है उसको अच्छे से। अगर आप उसने लंबा 5 6 लाइन का दे दिया तो अ, उधर ही आपका 30 मिनट हो गया पढ़ने में। एंड आप उसको एनालाइज करोगे, उसके डेटा जो है ना उसको इंटरप्रेट करोगे अपने अंदर ही अंदर, उसके लिए एक्स्ट्रा 20 मिनट लगेंगे। उधर ही आपका लगभग 1 मिनट खत्म हो गया एंड आप उसको 1 2 मिनट में सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपकी 3 मिनट बर्बाद हो जाता है। ओके, हाँ, यहाँ पे देख अब अगर आप ऐसे टाइप क्वेश्चंस में आप मतलब मान लो कि इसमें क्लियरली देख सकते हो आप, पेपर का सेट जो है दैट इज सेट ये। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो शुरुआत वाला पार्ट जो है उसमें सब के सब न्यूमेरिकल भरा हुआ है। आपको शुरुआत में थ्योरी तो ज्यादा दिखाई नहीं है पेज पे। ओके, लोग क्या करते हैं, जो लोग
ऐसा बहुत लोग का जो मतलब वे ऑफ सॉल्विंग होता है कि सिक्वेंशियली, मतलब क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं, वो अप्रोच करते हैं क्वेश्चन 150 तक, वो लोग बीच में मतलब पलट के नहीं देखते। अब उनको सीक्वेंशियली सॉल्व करना। सो मान लो कि आपका सेट ये आ गया, लेकिन आपका देखिए पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है शुरुआत में, तो आपने इस क्वेश्चन सॉल्व करने में आपने लगा ली, सो आपको 20 क्वेश्चन तक आने में ही 1 घंटे निकल जाएगा। आप अगर आप तीन तीन क्वेश्चन 3-3 मिनट दे रहा है एक एक क्वेश्चन का, 20-25 क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो कितना हो गया। आप जब आप थियोरिटिकल में पहुंचोगे ना, जब आप पे प्रेशर बढ़ेगा, आप 1 घंटे का टाइम देखोगे, आप बस खाली कितना 25 या 30 क्वेश्चन ही किया था, आपको करना है 150, सो आपने लैग हो गया, तो आप उसकी उसमें क्या करेंगे, जल्दबाजी में करते रहेंगे। जब आप थ्योरी है तब आप मतलब उसका आपका ठंडा दिमाग नहीं रहता है। जब आप थ्योरी पे पहुंचेंगे बीच बीच में वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व करता है, लेकिन आपका दिमाग ठंडा नहीं रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, एंड आप जो टॉपिक आपको आता है उसका गलतियाँ कर लेते। तो खाली आपका प्रिपरेशन में मतलब क्लास करना, उसके क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व करना, रिवीजन करना, इस सोली इस पे भी डिपेंड नहीं है आपका टेस्ट का परफॉर्मेंस। एक मेन चीज़ जो है, आप जिस तरीके से आप एग्ज़ाम सॉल्व करते हो वो बहुत मैटर करता है आपका। मैं ऐसा करता था उसकी प्रीलिम्स का पेपर, शुरुआत में मैं भी ऐसा ही सीक्वेंशियली करते जाता था, लेकिन उससे मेरा अटेम्प्ट होता था, अगर मैं पूरा पढ़ के जाता था तब भी मेरा 120 या 110 तक की अटेम्प्ट हो पाता था। मोस्टली मैंने आखिरी जो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होता था वो मैं देख भी नहीं पाता था टाइम की वजह से। तो उसके बाद मैंने चेंज कर लिया। एक दिन लगा कि ऐसा अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं कैसा जाता है। तो अ, अब हमने उसको एनालाइज किया है पेपर को रफली। ये प्रोसेस आपको करने में, अगर आप पहली बार कर रहे हैं, आपको 15 मिनट लगेगा, ठीक है। मतलब पहली बार में आप एस नहीं करोगे इस प्रोसेस को, पहली बार थोड़ा टाइम लग जाता है 15 मिनट, वर्स्ट केस में 20 मिनट में लगता है। कुछ लोग ऐसा करते थे ना, जब आप क्वेश्चन ऑप्शन देखते हो, मतलब उसके उनके दिमाग उधर फंस जाता है, उनको लगता है अरे क्वेश्चन तो देखा देखा हुआ है। वो वो जो पहले प्रोसेस जो मतलब सीरियल क्वेश्चंस को देख कैटेगराइज करना है, वो लोग फंस जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन तो मुझे आता है, तो उधर ही फंस जाता है उसने। तो ऐसा टाइप सिचुएशन में थोड़ा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है। तो आपको खाली करना है, पेपर चेक करना है हर क्वेश्चन प्रेजेंट है कि या नहीं। उसी प्रोसेस में आपको थ्री क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है। मैं आप जो भी सिंबल यूज़ कर ले, मैंने टी यूज़ करता था, TH यूज़ कर ले, आप डॉट लगा लीजिए, कुछ स्टार मार्क कीजिए, कीजिए। सो फाइनली अपना क्या हुआ है, 87 क्वेश्चंस वर थियोरेटिकल, 63 क्वेश्चंस वर न्यूमेरिकल। और बात है थ्योरी में जो, हाँ ठीक है, कुछ क्वेश्चंस का थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वन वर्ड आंसर्स भी होते हैं थ्योरी में। एक और बात है, आपको पेन लगाने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, तो आप तुरंत उसको स्किप कर सकते हो एंड बाद में जा सकते हैं। तो आपको जो मतलब जिस साल का भी आप पेपर दे सकते हो ESC का, आपको 80 to 90 क्वेश्चंस होता है। ओ, थियरिटिकल 82 क्वेश्चंस तो आपको थियरिटिकल ही मिलता है। मोर देन 50% ऑफ द पेपर कंसिस्ट ऑफ थियरिटिकल क्वेश्चंस which can be easily solved without using the pen. ओके, ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है, लोग यहाँ पे टाइम बर्बाद कर देते हैं न्यूमेरिकल में फंस जाके, विच वर टाइम कंज्यूमिंग, विच वर स्कोरिंग बट टाइम कंज्यूमिंग। तो ये आपका हो गया पहला स्टेप है। इसके बाद आपने कैटेगराइज कर दिया, अब देखते हैं वैसे नॉर्मली सॉल्व कर लेते एक एक क्वेश्चन को जैसा करते थे, ठीक है। तो अब हमको सॉल्व करना है खाली थियरिटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। आप न्यूमेरिकल को टच मत करना, थियरिटिकली करते रहना, देखते हैं कितना आता है। मानते हैं कि यही असली एग्जाम है, एंड यहाँ पे देखते कैसा कैसा करते हैं। ओके, पेज 1 में जो है उसमें कुछ थ्योरी नहीं है।
पेज 2 में भी नहीं है। पेज अपना पहला थियरिटिकल क्वेश्चन आया था सेट ये में, दैट इज 16th क्वेश्चन। अगर उस बंदे ने 15 क्वेश्चंस तक उसने सॉल्व करना मतलब बैठ गया, उसको आधा मिनट के बाद, आधा मिनट पेपर उधर ही लग जाएगा। 30 to 40 minutes ही विल स्पेंड द टाइम ऑन सॉल्विंग जस्ट 15 क्वेश्चंस। लेकिन आपको 30 मिनट्स में सॉल्व करना है 25 क्वेश्चंस। तो अगर मान लो 30 मिनट में सॉल्व कर दिया, मतलब वो आधे घंटे में 10 क्वेश्चन लैग कर रहा है। ओके, 16 क्वेश्चन में आए थे हम, उसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चैनल राउटिंग। 1 मिनट आप भी इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद शुरू कर लेते हैं। तो ओके, इस क्वेश्चन में मानना कि सबने पढ़ लिया है, तो अब देखते हैं। इसने बोला है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चैनल राउटिंग। ओके, इसने 4 पॉइंट्स क्या बोला थे। इन चैनल राउटिंग द फ्लड हाइड्रोग्राफ एट various section of the reach is predicted by considering a channel reach and an input hydrograph at the upstream end। चैनल राउटिंग बेसिकली क्या होता है, आपकी कोई भी स्ट्रीम में एक जगह पे आप उसकी फ्लड हाइड्रोग्राफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन दी अपस्ट्रीम फ्लो। सो दिस इज करेक्ट। ओके, ये सही है ऑप्शन। एंड नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एज द फ्लड वेव मूव्स डाउन द रिवर द शेप ऑफ द वेव डज नॉट चेंज। ये गलत है। जनरली आप देख सकते हैं फ्लड हाइड्रोग्राफ जो शेप है वो इन्वर्टेड यू शेप में होता है। ओके, पहले आप देख लीजिए, लास्ट लाइन जो है वो पढ़ लीजिए पहले। सबसे पहले वो क्या पूछ रहे हैं हमसे। इसने कहा कि विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। हाँ, इसने बोला कि नॉट करेक्ट के बारे में बता रहे हैं। वो आप पहले अंडरलाइन कीजिए। नॉट करेक्ट इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में दो तरीके से पूछ सकते हैं। वो पूछता है करेक्ट, एक बार कभी कभी पूछता है नॉट करेक्ट। ओके, तो ये बात आप मतलब इसी गलतियाँ उस टाइम पे होते हैं जब आप शुरुआत में न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो। आपको 20-25 क्वेश्चन के बाद थियरिटिकल 20-25 न्यूमेरिकल के बाद एक थियरिटिकल मिलता है। जब आप जल्दबाज में क्या करते हो, आखिरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हो, खाली 4 ऑप्शन पढ़ लेते हो। आपको लगता है कि अच्छा ये दोनों सही है, मुझे आता है, तो आप तुरंत कभी कभी करेक्ट ऑप्शन टिक कर देते हो। उधर ही आपका क्वेश्चन पूरा मतलब जो क्वेश्चन आप कर सकता है पॉजिटिव नंबर ला सकता है, उस क्वेश्चन में आपको नेगेटिव जा रहा है। -2/3, 2 - 2/3 मतलब कितना हुआ, 2.67 मार्क्स आप उधर लॉस कर रहे हैं। खाली जो क्वेश्चन उनको नहीं आता है वो बंदा छोड़ देता है, उसका खाली 2 नंबर ही जाता है। लेकिन आपको क्वेश्चन आता है, लेकिन आप हरी में फंस गए हो न्यूमेरिकल करने में। उसकी वजह से इस क्वेश्चन आप पूरा नहीं पढ़ पाया। आप आपके अजम्पशन के हिसाब से आंसर लगा दिया। ओके,
यहाँ पे आपको जिनको नंबर ही नहीं आता था, जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन आप उससे कम नंबर पा रहे हैं क्योंकि सिली मिस्टेक्स की वजह से। आपको ये अवॉइड करना है। वही है, जब आप थ्योरी क्वेश्चंस करते हो आराम से करना है कि पूरा पढ़ना है, उसको आपको 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं आप मैक्सिमम क्वेश्चन। ऐसा होता है कि टेस्ट सीरीज जब आप सॉल्व करते हो, अगर आप मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो पूरा क्लास अटेंड किया है एंड रिवीजन भी अच्छा एक बार अच्छे से रिवीजन, 2 बार रिवीजन भी अच्छे से कर गए, उनके हिसाब से बता रहा हूँ। मतलब मैं उनके हिसाब से, मतलब मेरा लेवल मैच करता है थोड़ा। मैंने प्री ESC 21 प्री अच्छा स्कोर किया था, मेंस भी मेरा अच्छा खासा ही लग रहा था। रिजल्ट नहीं दिया अब तक, लेकिन मेरा इंटरव्यू का भी कॉल आया था अभी तो। सो तो बताऊँ, इस बार मेरा अच्छा खासा गया है इस टेक्निक के हिसाब से, मैं ये आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। सो आपको पहली बार लास्ट लाइन देखना है, ये पूछ रहा है नॉट करेक्ट या करेक्ट। ओके, हमने पहले ऑप्शन पढ़ा, उसके बाद आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए उसने क्या क्या स्टेटमेंट्स पूछ रखे हैं ऑप्शंस में। तो इसने बोल रहा कि इन चैनल रूटिंग द फ्लैट हाइड्रोग्राफ वेरियस सेक्शंस ऑफ रीच इज प्रेडिक्टेड बाय कंसीडरिंग चैनल रीच एंड एन इनपुट हाइड्रोग्राफ एट द अपस्ट्रीम। ठीक है, ये बात मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। The downstream hydrograph is predicted by the upstream hydrograph, upstream measurements. Okay, so option 1 जो है that is correct. तो आप पूरा मत पढ़ लीजिए, पहले आप ऑप्शन 1 पढ़ा था वो करेक्ट है, लेकिन आंसर जो पूछ रहे दैट इज नॉट करेक्ट। तो आप ऑप्शन ए एंड डी जो है, उन ऑप्शन ए एंड सी, ऑप्शन ए एंड सी वर नॉट द करेक्ट आंसर। सो यू आर लेफ्ट विथ 2 and 3, मतलब यू आर लेफ्ट विथ बी एंड डी। तो आप ये देख सकते हो, बी एंड डी में कॉमन है, स्टेटमेंट 2 इज कॉमन। ओके, एंड स्टेटमेंट 3 and 4 आर वेरिंग। तो आप स्टेटमेंट 2 पढ़ने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है। okay? आप बेसिकली स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, मतलब आप फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, आपने पूरा तैयारी करके गए एंड आपको स्टेटमेंट 2 भी मतलब ऐसा आपको लग सकता है कि आप उसको जज कर पाएंगे उस, मतलब आपके नॉलेज के हिसाब से स्टेटमेंट 2 आप कर सकते हैं कि वो सही या नहीं है, लेकिन उस पे उसके आपका कुछ यूज़ नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर करने का, क्योंकि हम पहले ही खाली स्टेटमेंट 1 पढ़ के हमने ऑप्शन ए एंड सी को एलिमिनेट कर दिया है। एंड ऑप्शन 2 जो स्टेटमेंट 2 जो है दैट इज सीन इन बोथ द केसेस बी एंड डी। तो वो पढ़ने का ज़रूरत नहीं है आपको, आपको खाली पढ़ना है 3 and 4। 3 जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। फ्लड वेव्स पासिंग डाउन ए रिवर हैव देयर पीक्स अटेन्यूएटेड ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, हाइड्रोग्राफ में आप देखते हैं डाउनस्ट्रीम हाइड्रोग्राफ जो होता है उसके पीक जो होता है दैट विल जनरली बी लेस देन द पीक ऑफ द हाइड्रोग्राफ एट आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ की जो पीक होता है दैट विल बी लेस देन द इनफ्लो हाइड्रोग्राफ, क्योंकि दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन लॉसेस। सो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट, 1 and 3 करेक्ट है। रॉन्ग स्टेटमेंट्स अब क्या है 2 and 4। सीधा आप ऑप्शन डी टिक कर लो एंड आप आगे निकल लो। तो इसमें आपने क्या किया बेसिकली, आप क्वेश्चन देखा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट पूछा है इसने। तो आपने पहले स्टेटमेंट 1 पढ़ा, शुरुआत से पढ़ा, तो वो करेक्ट लगा आपको, तो आपने ए एंड सी एलिमिनेट कर दिया। फिर आप देख रहे थे कि बी एंड डी ऑप्शन जो बचा है उसमें दो स्टेटमेंट 2 इज कॉमन, सो उसको पढ़ने की आपकी ज़रूरत नहीं है। आप सीधा 3 स्टेटमेंट में जाइए। उससे आप इसको जज कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्वेश्चन को। यस, यू कैन जज इट बेस्ड अपॉन योर नॉलेज। उसने डायरेक्टली पूछा है कि, उसने डायरेक्टली कह दिया कि आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ होते हैं उसका पीक जो है दैट विल बी लेस देन इनफ्लो हाइड्रोग्राफ ड्यू टू फ्रिक्शन, ये भी सही है। तो अपना आंसर फाइनल हो गया 2 and 4। अब खाली बस 2 स्टेटमेंट पढ़ के ही इसको लगा लिया है। 2 and 4 पढ़ने में आपको टाइम वेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पे आपका 10-15 सेकंड बच गया। अगर आपको तीसरा स्टेटमेंट नहीं, मतलब आप कह नहीं सकते श्योर शॉर्टली, तब आप 4th स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। तो आपको फालतू में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ऐसा कीजिए कि पहले आप इस तरीके से पहले एलिमिनेट कर दीजिए 1-2 स्टेटमेंट के बारे में। कभी कभी होता है कि एक ही स्टेटमेंट से आप कर सकते हो। ओके, तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर आ गया डी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल का है 17th। ओके,
एक मिनट इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद इसको भी मतलब मैंने किस तरीके से सॉल्व किया ऐसा देखते हैं, शॉर्टेस्ट फॉर्म पॉसिबल इन द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन पॉसिबल। ओके, ओके, इसको भी हम शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 17। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू वाटर लॉगिंग कंट्रोल। इसमें भी पहले क्वेश्चन के जैसा है, तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द अबव और करेक्ट बोल रहा है इसने, इनकरेक्ट नहीं करेक्ट बोल रहा है। सो स्टेटमेंट 1 इसने दिया कि इट इज एविडेंट दैट वाटर लॉगिंग कैन बी कंट्रोल्ड ओनली क्वांटिटी ऑफ वाटर into the soil below is checked and reduced। वाटर लॉगिंग फिनोमेना होता है कि जब आप क्रॉप्स को रिक्वायर्ड वाटर से ज़्यादा सप्लाई कर रहा है तो आपके ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। वो क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं होता है। क्रॉप्स का दो जोन होता है, कैपिलरिटी एंड नॉन कैपिलरिटी। नॉन कैपिलरिटी में एयर होना चाहिए क्योंकि प्लांट्स को भी ऑक्सीजन सप्लाई ज़रूरी है। नॉन कैपिलरिटी पोर से वो ऑक्सीजन इनहेल करती है एंड कैपिलरिटी के पोर्स के थ्रू वाटर लेती है फ्रॉम द सॉइल। अगर आपकी वाटर लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, नॉन कैपिलरिटी पोर्स जो होते हैं सॉइल का, उसमें भी आपके वाटर भर जाता है, ले तब उस टाइम पे क्या होता है, आपका प्लांट जो है वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती है। सो उसकी इन एयर इनटेक कैपेसिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से ग्रोथ में अच्छा नहीं रहेगा। तो ये स्टेटमेंट जो कह रहा है वाटर लॉगिंग इज कंट्रोल, मतलब आपको वाटर लेवल चेक करना है सॉइल में। रूट जोन डेप्थ आपने देखा होगा इसमें सॉइल में, और उससे ज़्यादा नहीं देना होता है, मतलब प्लांट जहाँ पे रूट तक होती है उससे ऊपर नहीं देना होता है। वहाँ तक वो कैपिलरिटी तक एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन आपने ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया ग्राउंड टेबल तक तब दिक्कत हो जाएगी नॉन कैपिलरिटी पोर्स ब्लॉक होने की वजह से। तो पहली स्टेटमेंट जो है दैट इज करेक्ट। दैट इज क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द सॉइल बिलो इज चेक्ड एंड इफ ज़्यादा है तब रिड्यूस करना है। इसने केस दे रखा है वाटर लॉगिंग कंट्रोल, सो दैट इज करेक्ट। सेकेंड इज attempt should be made to reduce the seepage of water from canals and water sources। ये भी एब्सोल्युटली सही है क्योंकि सीपेज वजह से क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो वाटर लॉगिंग एरियाज में अच्छा नहीं होता है वाटर लेवल इंक्रीज होना। तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट 3, द एंटायर irrigable land should receive the canal water in all seasons। ओके, दिस इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 3 जो है वो सही नहीं, क्योंकि जब आप कैनाल वाटर खाली यूज़ कर रहे हैं तो आपके ग्राउंड वाटर लेवल जो है, जब आप एक्सेस इनटेक ले लेते हो तब आप बढ़ते जाती है। जितना प्लांट्स ले सकते हैं वो उतना लेते हैं, लेकिन जो बच जाता है वो ग्राउंड वाटर पे परकलेट हो जाते हैं। जब आप खाली कैनाल से ले रहा है, कभी कभी आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देते हो तो क्या होता है, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है, दैट विल लीड टू मोर वाटर लॉगिंग। तो अपना स्टेटमेंट 3 जो है दैट इज इनकरेक्ट एंड 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन हो गया ए। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते थे आपकी जो है दो क्वेश्चन पूरा तीन ऑप्शन पता होना चाहिए।
पूरा 3 स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए बेस्ड अपॉन द गिवन ऑप्शंस। ओके, सो इसमें आपको पूरा आइडिया होना चाहिए वाटर लॉगिंग के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी आप 1 मिनट में कर सकते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन टेक्स लेस देन 1 मिनट। एंड ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसको भी हम एवरेज टाइम इंटरवल कैलकुलेट कर देते हैं। सो फाइनल में चेक करते हैं अपना पूरा 87 क्वेश्चन आंसर करने में कितना टाइम लगा है। सो क्वेश्चन 16 जो है उसमें आप कर सकते हैं, मान लो कि 1 मिनट है, आपको खाली 1/4 से खाली फर्स्ट लाइन पढ़ना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, एंड नेक्स्ट आपको नॉट करेक्ट लिखना है। आपको 1 एंड 3 पढ़ने में हो जाएगा। सो वो हुआ है अपना 16 क्वेश्चन हुआ है 1 मिनट। एंड 17 क्वेश्चन ये भी वन वर्ड आंसर से दिया हुआ है, तो दिस विल ऑल्सो टेक 1 मिनट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 19 न्यूमेरिकल, 20 न्यूमेरिकल, 21 थियरिटिकल आया है। ओके, इसको भी आप 1 मिनट पढ़ लो, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ओके, आप 21 का भी सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट लाइन पढ़ लीजिए पहले। ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लॉस ऑफ वाटर इन कैनाल्स। ओके, एंड इसने अब लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसने बोला है करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने के लिए। ओके, अब स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे उसके बाद। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट, द वाटर लॉस्ट बाय एवापोरेशन इज generally very small as compared to the water lost by seepage in certain channel। चैनल में जनरली होता है अपना वाटर लेवल होता है वो स्टैग्नेट नहीं होता, क्योंकि वाटर फ्लो होता रहता है। पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर कहीं और पे चले जाएगा। सो कैनॉल इन कैनॉल्स एवापोरेशन इज लेस कंसिडर टू सीपेज। इसने भी एवरी टाइम भी नहीं बोला, इसने मे बी कंपेयर टू द लॉस सीपेज इन सर्टेन केसेस इन सर्टेन चैनल्स बोला है। जो फ्लोइंग चैनल से, हाँ मतलब जो एक्सेप्शन भी कर सकते हो कुछ चैनल्स जिसके ऊपर सनलाइट ज़्यादा नहीं होता है, सीपेज उसमें कंसिडरेबली ज़्यादा होता है एवापोरेशन के कंसिडरेबल। सो पहला ऑप्शन सही है। सो आप ऑप्शंस में जाइए, कितने वन ऑप्शन किसी में नहीं है तो उसको एलिमिनेट करो। सो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन जो है उसमें 2 एंड 3 ओनली लिखा हुआ है, तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सो नाउ यू आर लेफ्ट विथ ए, बी एंड डी। आप नेक्स्ट ऑप्शन में जाइए, इसमें कह रहा है कि इन परकलेशन there exists a zone of continuous stratum from the canal to water table and a direct flow is established। percolation जो होता है that is movement of water from surface to the deep of the soil। जब तक वो मूव करेगी, जब तक वो ग्राउंड वाटर टेबल को टच नहीं करती तब तक उसकी परकलेशन होती है टिल इट टचेस द ग्राउंड वाटर टेबल। अगर उसने ग्राउंड वाटर टेबल टच कर दिया तो वहाँ तक ख़त्म हो जाती। तो ये ऑप्शन भी सही है आपका। तो आप देखिए ए सी डी है उसमें हर में 2 दिया हुआ है, वो देख लीजिए। ए पे 1 एंड 2 दिया हुआ है, सो दिस इज पॉसिबल। बी एलिमिनेट कर दिया। सी पे 1 एंड 3 नहीं दी, ओनली 1 एंड 3 दिया हुआ है। ओके, तो इसमें 2 प्रेजेंट नहीं, आप सी भी एलिमिनेट कर सकते हो। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ए एंड डी। ओके, इसमें देख लीजिए, in absorption a small saturated soil zone exists around the canal section and is surrounded by a zone of decreasing saturation। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वाटर के अराउंड जो सॉइल मटेरियल होता है कैपिलरिटी के थ्रू उसमें खींचा जाता है वाटर, वो भी सर्टेन डिस्टेंस तक है,
पूरा तक नहीं खींचा जाता है. सो वी कैन सी दैट सैचुरेशन लेवल्स वेरी आफ्टर द कंप्लीट सैचुरेशन. सो 3 भी सही है. सो अपना ऑप्शन हो गया डी, 1 2 3. तो दिस कैन बी सॉल्व्ड इन 1 minute. ये भी हो गया. ओके, अब चलते हैं 22nd पे. आप 1 minute इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद देखते हैं कैसा करते हैं. Okay, now let's see. The chief aim of river training is to protect uh, the water from the loss, bed scouring, to achieve ultimate stability of the river with aid of river training measures, pitching of the banks and provision of launching aprons. इसने बोल रहा है कि रिवर ट्रेनिंग का पर्पस क्या होता है, एम मतलब किस बेसिस पे आप इसको रिवर ट्रेनिंग वर्क्स प्रोवाइड करते हैं. इसका मेन एबिलिटी होता है, इसका मेन होता है टू अचीव द अल्टीमेट स्टेबिलिटी ऑफ द रिवर विद द एड. इसका मोटो मेनली होता है टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी फॉर द रिवर. सो इसका ऑप्शन हो गया सी. इसको आपको सॉल्व करने में अपना चौथा क्वेश्चन है थियरिटिकल का. दिस विल टेक ओनली 30 seconds. ये हो गया. नेक्स्ट वी विल मूव इनटू क्वेश्चन नंबर 23. तो ये छोटा क्वेश्चन है. we will see. Which one of the following conditions is correct for a channel to behave in the true regime. Okay. टिल्ट regime का true regime का दो बेसिक कंडीशन होते हैं. डिस्चार्ज एंड सिल्ट ग्रेड आर बोथ आर. डिस्चार्ज इज यूनिफॉर्म एंड सिल्ट ग्रेड इज कांस्टेंट. तो सीधा ऑप्शन डी है. अगर आप क्लास अटेंड कर दिया इरिगेशन का, आप ये सिंपली वन वर्ड आंसर है. इसको आप सॉल्व करने में 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं इसको. ओके, ट्रू रिजिम उसका कंडीशन होता है यूनिफॉर्म डिस्चार्ज एंड सिल्ट चार्ज इज कांस्टेंट. मतलब इनकमिंग एंड आउटगोइंग सेम होना चाहिए. ओके, तो ये हो गया. नेक्स्ट 24 थियरिटिकल है, 24 न्यूमेरिकल एंड 25 इज थियरिटिकल. ये भी आप पढ़ लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं. Yeah, okay. Now let's see it. Which one of the following is the merit of combined sewer system? इसमें आप मेरिट जो वर्ड है उसको अंडरलाइन कीजिए एंड आप ऑप्शंस पढ़िए एक बार. एक ये रेन वाटर डाइल्यूट्स द सीवेज देयरफॉर इट कैन बी इजीली एंड इकोनॉमिकली ट्रीटेड. ओके, मान लो कि आप इस टॉपिक के बारे में जानते नहीं हैं, सो ऑप्शन ये आपको सही लग सकता है एंड आप नीचे वाला ऑप्शंस भी देख लीजिए. इनिशियल कॉस्ट इज हाई एज कंपेयर्ड विद द सेपरेट सिस्टम. ये सही है, लेकिन इसमें जो दिया है इनिशियल कॉस्ट इज हाई, दैट इज नथिंग बट डीमेरिट. तो बी नहीं हो सकता. सी जो है इट इज इफ होल सीवेज इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय पंपिंग इट इज अनइकोनॉमिकल. ये सही हो सकता है या गलती हो सकता है. यहाँ पे
स्टेटमेंट दिया हुआ, स्टेटमेंट इंप्लाई करता है डीमेरिट कंडीशन को, एंड डी दिया हुआ है ड्यूरिंग हेवी रेन्स द फ्लोइंग ऑफ सीवर्स विल एंडेंजर द पब्लिक हेल्थ। ये सही है, लेकिन आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, ये सही है गलत उससे भी आपको फर्क नहीं पड़ता। डी जो स्टेटमेंट है वो भी दिया, वो कैटेगराइज करता है डीमेरिट को। ओके, आप इसमें क्लियरली देख सकते हो बी सी डी ए वो सारे मतलब क्रिटिसाइज कर रहा है इस सिस्टम को। ये जो है वही खाली इसको सपोर्ट मतलब प्रो बोल रहा है, मतलब इसके साइड दे रहा है। बाकी बी सी डी है वो क्रिटिसाइज कर रहा है क्लियरली। आप इसके अगर इसके ऊपर आप नॉलेज है या नहीं वो फर्क नहीं पड़ता, आप इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो है दैट इज द मेरिट, ओनली मेरिट इन दिस, सो ये विल बी द ऑब्वियस आंसर। इसके लिए आप जज करने में खाली आपको पूरा पढ़ना है, मतलब स्टेटमेंट पढ़ना है एंड नेक्स्ट ए बी सी डी ऑप्शन पढ़ना है। आप उनके लिए जितना टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना टाइम लगेगा आपको, उसी के थ्रू अंदाजा लग गया कि बस ए स्टेटमेंट इज ए मेरिट एंड बी सी डी या डी मेरिट्स उसने मेंशन। तो मानते हैं इसको पढ़ने में आपको 30 मिनट लगेगा, सो इट विल टेक अराउंड 30 सेकेंड्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, 25 हो गए, 26। Okay, now let's see this. Which of the following is a device used for measuring the velocity of flowing water in pipes or channel? Okay, the device इसको कहते हैं पिटॉट ट्यूब और प्रैंडल पिटॉट ट्यूब कह सकते हैं। दिस इज नथिंग बट द इंक्लूजन ऑफ टू डिवाइसेस that will measure stagnation pressure and hydrodynamic pressure। उसी के थ्रू दो डिवाइसेस के कंबाइनिंग है, वो आपका निकलेगा सीधा पिटॉट ट्यूब है। बस ये वन वर्ड स्टेटमेंट पे मतलब ये आपको फ्लूइड फ्लूइड मैकेनिक्स का जो चैप्टर होता है उसमें चैप्टर 2 होता है फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स, उसी में आपको पढ़ा देंगे सीधा। नहीं, फ्लो मेजरमेंट की चैप्टर होता है उसी में आपको आएगा that is used for flow measurement and pitot tube is used for Prandtl pitot tube और pitot tube that is used for measuring the velocity। ये वन वर्ड आंसर आपको ये पढ़ने में 10 सेकंड लगेगा, तो आपको सॉल्व करने में 10 सेकंड लगेगा। आपने पढ़ लिया है पूरा, मतलब आपको अंदाजा है इस चैप्टर के बारे में, तो इसके टाइम मानते हैं हम 10 सेकेंड्स। नेक्स्ट थियरिटिकल क्वेश्चन है 27th। Okay, let's say this. Which of the following is the process in which ammonia is oxidized to nitrites and then nitrates by aerobic bacteria? यहाँ पे प्रोसेस देख सकते हो आप, इसको क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड इट इज़ एन एरोबिक प्रोसेस। अपना इन नाइट्रोजन जो प्रोसेस होते हैं इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है नाइट्रिफिकेशन एंड दूसरा होता है डीनाइट्रिफिकेशन। जब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको नाइट्रिफिकेशन रिजल्ट नाइट्रिफिकेशन कहते हैं एंड रिडक्शन डिफाइंस डीनाइट्रिफिकेशन। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं हियर ammonia is getting oxidized into first nitrates and then it is turning into nitrates by aerobic bacteria। इसने क्लियरली मेंशन भी किया है एरोबिक। यहाँ पे आपको सीधा लगाना है ऑप्शन ये नाइट्रिफिकेशन। ये आपको पढ़ने के लिए जितना आपको स्टेटमेंट पढ़ने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही आपको बस वही टाइम है इसके क्वेश्चंस पेंडिंग। ये आप मान लो कि वर्स्ट केस में 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं।
अगर आपको ये पता है सो आप सीधा टिक मारोगे, अगर नहीं आता है तो आप छोड़ देंगे, अगले में चले जाएंगे। आप ये कह सकते हैं आपने स्कूल में भी कभी, स्कूल या इंटर +1 +2 साइंस में भी पढ़ाया होता है वैसा भी। ऑक्सीडेशन कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, एंड रिडक्शन कहते हैं डिकम्पोजिशन को, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं एनरोबिक कंडीशंस में। ओके, तो ये 27 हो गया, एंड 28 देख लीजिए आप। Yeah, okay, let's see. A tank into which raw or partly treated sewage is collected, uh, left to spray, left to stay, and discharged at such a rate as may be necessary for subsequent, as a may be necessary for subsequent treatment. Okay. सो इसमें मुझे डोसिंग टैंक का कुछ आइडिया नहीं है। मैंने जब पढ़ा था तो डोसिंग टैंक क्या होता है वो मुझे आइडिया नहीं है। सो मैं अब क्या करता हूँ, बाकी 3 ऑप्शंस पढ़ता हूँ, अगर उन वो मुझे पता है उनका पर्पसेस क्या है तो हम एलिमिनेशन के थ्रू जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ए टैंक इन विच रॉ और पार्टली ट्रीटेड सीवेज इज कलेक्टेड, लेफ्ट टू स्टे एंड डिस्चार्ज्ड एट सच ए रेट एज मे बी नेसेसरी फॉर सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट इज कॉल्ड फॉर। यहाँ पे इसने क्लियरली मेंशन, मतलब ये इनडायरेक्टली डोसिंग का डेफिनेशन दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टली ट्रीटेड है, वो कलेक्ट करके रखा हुआ है, एंड डिस्चार्ज एट ए सच ए रेट एज मे बी नेसेसरी फॉर सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। मतलब एट ए टाइम नहीं रिलीज कर रहा है, एज ए पार्ट्स रिलीज कर रहा है, वो इनडायरेक्टली डिफाइन कर रहा है डोसिंग के टर्म। तो उसमें आप टिक कर सकते हैं सीधा डोसिंग टैंक। मुझे जब एग्जाम लिया था मुझे आइडिया नहीं था कि डोसिंग टैंक क्या होता है, लेकिन वो आपको पता है, सेडिमेंटेशन आपको पता है। आप कलेक्ट करेंगे, जब आप उसको रिलीज करेंगे, सेडिमेंटेशन के बाद आपकी ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, उसके बाद कोएगुलेशन आता है। तो इसमें मे बी नेसेसरी ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट कह रहा है। सेडिमेंटेशन टैंक में कंप्लीट आपको डेफिनेटली चाहिए सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट रिलीज के बाद। सो ओके, एंड स्किमिंग टैंक जो है उसमें जनरली आप ऑयल एंड ग्रीस निकालते हो, एंड जो डर्बिस वो सब ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेटिलेबल पार्टिकल्स एंड बीओडी होता है वो रह जाता है। सो उसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट चाहिए। एंड सेटलिंग टैंक जो होता है उसमें आपके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो सेटल हो जाता है, एंड आपकी जो सस्पेंडेड मैटर है वो बच जाता है। सो उसके लिए भी ट्रीटमेंट चाहिए। तो मुझे डोसिंग टैंक के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, एंड सेडिमेंटेशन टैंक के लिए ये कह सकता हूँ कि ट्रीटमेंट चाहिए, स्विमिंग के भी ट्रीटमेंट चाहिए, सेटलिंग के लिए भी ट्रीटमेंट चाहिए। उसने क्वेश्चन में दे रखा है समटाइम्स अ ट्रीटमेंट मे बी नेसेसरी। तो आई एम लेफ्ट विथ द ऑप्शन ये। तो पहले मुझे क्वेश्चन करना है, एंड ये सब एलिमिनेट करने में 1 मिनट मानते हैं, एंड हम 28 क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। Yeah, okay. In 29, in context of the sludge conditioning, यूलिट्रेशन इज सिनोनिमस टू। मुझे कुछ आइडिया नहीं इसके बारे में, तो मैं ये देख सकते हैं कि अगर ऑप्शंस जो है उसमें रिलेटेड कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं या नहीं। इसमें देखते हैं कि वॉशिंग जो है आई कांट रिलेट, हीटिंग भी कांट रिलेटेड, कंपैक्टिंग भी कांट रिलेटेड, फिल्ट्रेशन भी कांट रिलेटेड। क्वेश्चन के थ्रू अगर हिंट के थ्रू जाएंगे तब भी नहीं आ रहा है। सो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। तो मुझे पढ़ने में 30 मिनट कुछ लगा, 15 सेकेंड पढ़ने में लगा था, एंड अगले 10-15 सेकेंड ऑप्शन देखने में लगा था। उसमें मान लेते हैं 40 सेकेंड्स हमने ट्राई किया है, या क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया, अब आगे बढ़ते जाएंगे। एंड जब आप क्वेश्चन स्किप करते हैं उनका भी आप एक सिंगल लगा लीजिए,
जैसा कि मान ले कि लेफ्ट एल मान ले एंड यू आर स्किपिंग एस, कुछ भी आपके नॉमेनक्लेचर जो यूज़ करते फेमिलियर होते, वो आप कुछ सिंबल या लेटर से उसको मार्क कीजिए। अगर आपके पास 150 ऐसा मतलब पूरा देखने के बाद टाइम बचा है, कभी कभी मतलब कभी कभी पेपर आसान हो जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस जो आप पहली बार में सॉल्व करते हो, जो तुरंत स्किप स्किप करके आप कभी 2 साढ़े 2 घंटे में कभी कभी ख़त्म हो जाते हैं, तो आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। Blood thickening is commonly achieved by the following standards. ओके, देखते हैं। ये कह रहा है कि इसने दिया हुआ है कि स्लड थिकनिंग इज कॉमनली अचीव्ड बाय फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स। कुछ 3 मेथड्स दे रखा है एंड नीचे दे रखा है विच ऑफ द अबव मेथड्स आर करेक्ट दे रखा है। ओके, करेक्ट आप अंडरलाइन कीजिए खाली। अब देखिए, ग्रेविटी थिकनिंग, यस दिस इज पॉसिबल फॉर heavy particle sludge, and air flotation, this is possible, okay, for lightweight centrifugation, this is the ये कह सकता है कि ऑप्टिमम मेथड है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होता है लेकिन इसकी जो थिकनिंग होती है दैट विल बी वेरी एफिशिएंट। तो आवर ऑप्शन विल बी ऑल दी 3 अबव, सो ऑप्शन डी। तो इसको 1 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो, सो इसका भी नोट करेंगे टाइम। 30 क्वेश्चन हो गया। तो अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं। इस पेज में भी हमको 3 क्वेश्चंस देख सकते हैं। ओके, 31 आप 1 मिनट पढ़ लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं। Yeah, okay. Now let's go into this 31. Which of the following is the process whereby chemicals are added to a wastewater, resulting in reduction of forces tending to keep suspended particles apart? Okay, इसमें clearly ऑनलाइन कर सकते हैं, वेस्ट वाटर रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ फोर्सेस बाय एडिंग केमिकल्स। एक ही मेथड है, कोएगुलेशन है सीधा। कोएगुलेशन में जो पार्टिकल्स निकालते हैं, कोएगुलेटेड सस्पेंडेड पार्टिकल्स, कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी निकल जाता है एंड सम कोलाइडल पार्टिकल्स भी निकाल देते हैं। सो इसमें आप बेसिक डेफिनेशन है, मतलब बेसिक क्वेश्चन है कोएगुलेशन चैप्टर से, आप सीधा इसको लाइन पढ़ के बता सकते हैं। द टेक्निक इज कोएगुलेशन। सो 31 क्वेश्चन जो है आप 30 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और टिल अब तक हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व किया है थियोरेटिकल का? 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। सो टोटल हुआ अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसके लिए टाइम कितना लगा? 1 + 1 3 4 420 430 445 545 545 625 725 755। 8 मिनट्स लगा था, हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व किया है अब तक। ठीक है? तो हम काफ़ी आगे चल रहे हैं। मतलब हमको जनरली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एवरेज टाइम 1 मिनट एंड 12 सेकेंड्स चाहिए, लेकिन अब 8 मिनट में 12 क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर दिया है। उस 12 नहीं, 11 क्वेश्चन सॉल्व किया है। उसमें एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया था, वो नहीं आता था, पढ़ लिया आपने। ओके, वी आर वेल ahead. Okay, now next move to next theoretical question, that is question number 32. हाँ, 2 सेकेंड्स आप पढ़ लीजिए, इसका और शुरू करते हैं।
Okay, here which of the following is a grit removal unit which also remove silt as well as some of organic matter along with the grit? तो डायरेक्ट आंसर है डिट्रियस टैंक। तो जो वेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन चैप्टर में आता है उसमें जो मतलब कंपार्टमेंट्स होता है उसमें अगर आप वो क्लास अटेंड किया नोट्स एक बार भी पढ़ लिया तो आपको सीधा पता चल जाएगा द आंसर इज डिट्रियस टैंक। एंड आपको जितने देर आपको क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगा था वही आपको आंसर करने का टाइम लगता है, उससे 5 सेकंड या 10 सेकंड ऐड कीजिए क्योंकि बबलिंग भी करना है आपको। तो इस क्वेश्चन आंसर करने में आपको लगेगा 30 सेकेंड्स जस्ट। 32 हो गए एंड नेक्स्ट थियरिटिकल क्वेश्चन इज 34। Okay, now let's see this. The quantity of nitrogen present in the wastewater before the decomposition of organic matter has started is indicated by. इसने कह रहा है कि the quantity of nitrogen present in the wastewater before decomposition of organic matter is started is indicated by. Before decomposition start होने से पहले ही कह रहा है इसने। तो अल्ब्यूमोइड नाइट्रोजन जो होता है दैट इज द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ओके, इनऑर्गेनिक quantity of nitrogen before the decomposition of organic matter has started is indicated by albumin nitrogen नहीं होता है। and next organic nitrogen before decomposition नाइट्रेट नाइट्रेट स्टेज होता है दिस इज लॉन्ग आफ्टर द डिकम्पोजिशन इज कंप्लीट मतलब लॉन्ग आफ्टर द डिकम्पोजिशन इज कंप्लीट। आपकी नाइट्रोजन होता है फ्री इनिशियल स्टेज ऑफ नाइट्रोजन दैट इज जस्ट आफ्टर द जस्ट बिफोर द कंटामिनेशन एंड नाइट्रेट आपका आता है ड्यूरिंग द कंटामिनेशन। आंसर में फ्री अमोनिया होता है दैट इज जस्ट बिफोर द कंटामिनेशन एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज जस्ट आफ्टर द कंटामिनेशन एंड नाइट्रेट आता है लॉन्ग आफ्टर द कंटामिनेशन। तो अल्ब्यूमाइड होता है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री अमोनिया एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। तो इसमें तो आंसर होना चाहिए नाइट्राइट। वो तो इसने दिया नहीं है तो इस क्वेश्चन में आंसर नहीं है और डिलीट कर देंगे क्वेश्चन। शायद उसने की अब तक रिलीज नहीं किया, मेरे हिसाब से डिलीट हो जाना चाहिए क्योंकि आंसर इसमें नहीं है कुछ भी। 34 हो गया, नेक्स्ट हम 35 में मूव करते हैं। ओके, लेट्स सी दिस। Okay, let's see. Which one of the following is that water content of the soil at which plants can no longer extract sufficient water for their growth? इसमें आप अंडरलाइन, आप जनरली जब थियरेटिकल पढ़ते हो जब आप की पॉइंट्स जो होता है उनको अंडरलाइन कीजिए। अब जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको होते हैं कि आपको एक और बार पढ़ना पड़ता है। ओके, उस टाइम फिर से आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा एक्स्ट्रा फ्यू सेकंड्स एक्स्ट्रा चले जाता है और हर एक सेकंड मैटर करता है आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में क्योंकि आपका पूरा 150 क्वेश्चन होता है। तो अब आप जब पहली बार पढ़ते हो उसमें आप की पॉइंट्स अंडरलाइन कीजिए, जब आप दोबारा पढ़ने की दोबारा उसको रिपीट करने के लिए जाते हैं आप सीधा उस पॉइंट पे देखते हैं एंड उनको आप माइंड में रिलेट करते हो
आपको टाइम बच जाता है थोड़ा, फ्यू सेकंड्स, एंड ऐसा कई सारे क्वेश्चंस में फ्यू फ्यू सेकंड मिलता है कि आपको कुछ मिनट आपको सेव हो जाएंगे। तो ये एक और हैबिट है आपको अडॉप्ट करने की। ओके, अंडरलाइन दी कीवर्ड्स। यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल एट विच प्लांट्स कैन नो लॉन्गर एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर फॉर देयर ग्रोथ। इस पॉइंट इज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, इसमें 10% ऑफ कैपिलरिटी वाटर एंड 0% ऑफ नॉन कैपिलरिटी वाटर, या 100% ऑफ कैपिलरिटी एयर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे दिया परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इसने कुछ मेंशन नहीं किया। टेल वाटर नहीं है, इरिगेटिंग एंड नहीं है, कैपिलरिटी वाटर नहीं है, यहाँ पे कैपिलरिटी कंप्लीट कैपिलरिटी भी नहीं है। सो विल्टिंग पॉइंट इज द नियरेस्ट थिंग। तो आपका आंसर इस ये। इसको आप सॉल्व करने में 45th क्वेश्चन है। इसको आपको सॉल्व करने में 1 मिनट लगेगा, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन देखना पड़ा। तो इसको 1 मिनट मानते हैं। 34th का भी देखते हैं, आपको पूरा पढ़ने में और एनालाइज करने में 1.5 मिनट मान लेते हैं। तो 34th क्वेश्चन जो है अमोनिया का, दैट विल कम इन द सेकेंड चैप्टर ऑफ द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल। और सीधा पॉइंट पे पूछा है, उसमें कुछ मेंशन कुछ नहीं दिया सेपरेटली, उस ट्रिकी नहीं था, सीधा डायरेक्ट था, लेकिन आंसर नहीं दिखा मुझे। कोचिंग वाले ने भी उसको आंसर दिया नहीं है, एंड फाइनल में डिलीट हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली द क्वेश्चन। नेक्स्ट 36। ऑर्गेनिक मैटर एंड इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ द वाटर आल्सो। सो उसका रिलेटेड ऑप्शन है व्हेन यूज्ड इन पाउडर्ड फॉर्म आफ्टर कोएगुलेशन, इट डज नॉट एड इन कोएगुलेशन। ये पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट बी, इट इंक्रीजेस द क्लोरीन डिमांड ऑफ द ट्रीटेड वाटर। नहीं, क्योंकि ये यूज करने के बाद ऑर्गेनिक मैटर जो है दैट विल बी डिक्रीज, सो इट डिक्रीजेस द क्लोरीन डिमांड। Its overdose is harmful? No. Activated carbon, it is good for treatment of the water. So अपना most appropriate option होगा C। इसके लिए भी 1 मिनट मान, 1.5 मिनट ले लेते हैं इसकी। And next we'll move to the 37 question. 7, this is numerical. 38 is also numerical. पेज में आ गया। नेक्स्ट 40th is theoretical. ओके, ये आप थोड़ा रीडिंग दीजिए एंड सीधा शुरू करते हैं। Okay, now let's see this. Which of the following is the characteristic of local shear failure? Okay, failure pattern is not clearly defined. फेल्यूर पैटर्न जनरल शेयर फेल्यूर और लोकल शेयर फेल्यूर में क्लियरली डिफाइंड होता है। आपको फेल्यूर पैटर्न दिख जाएगा एक सिमेट्रिकल जैसा,
पूरा दिखेंगे आपको फ्रॉम बॉटम ऑफ द फुटिंग टिल दी इट रीचेस द सरफेस। तो पहला ऑप्शन नहीं है। एंड दूसरा कह रहा है कि फेल्यूर सरफेसेस रीच द ग्राउंड सरफेस, ये भी सही नहीं है। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि देर इज नो बल्जिंग ऑफ सॉइल अराउंड द फुटिंग, यस देर इज बल्जिंग, स्लाइट बल्जिंग ऑफ सॉइल। जनरल शेयर फेल्यूर में बल्जिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें नहीं, इसमें थोड़ा कम होता है, देर विल बी बट स्लाइट। एंड चौथा कह रहा है फेल्यूर इज नॉट सडन, देर इज नो टिल्टिंग ऑफ फुटिंग। क्या ये करेक्ट है? हाँ, हमने देखा था फेल्यूर पैटर्न जो है लोकल शेयर फेल्यूर का वो सिमेट्रिकल होता है विद रेस्पेक्ट टू द फुटिंग एक्सिस। तो उससे हम कह सकते हैं कि फुटिंग का टिल्टिंग नहीं होगा। ओके, एंड फेल्यूर जो है वो सडन नहीं होता। जीएस जनरल शेयर फेल्यूर का सडन जनरल शेयर का सडन फेल्यूर होता है, लोकल और पंचिंग शेयर का ग्रेजुअल होता है फेल्यूर। सो अपना ऑप्शन है डी। तो इसमें पूरा चौथा ऑप्शन के चार ऑप्शन पढ़ने के बाद हमको आंसर कर सकते हैं। सो इसको 1 मिनट 30 सेकेंड्स मानते हैं। या ओके, अब तक हमें 40 क्वेश्चंस सॉल्व किया, मतलब अब तक कितना हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 थियरेटिकल सॉल्व किया 87 में। एंड टोटल टाइम हमको लगा अराउंड 30 मिनट्स, सॉरी अराउंड 14 मिनट्स। 14 मिनट्स में 17 थियरेटिकल क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट किए थे, उसमें दो हम नहीं कर पाए एंड एक का ऑप्शन नहीं है। सो 14 इन 14, तो वी वर वेल अहेड। आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर अगली क्लास में बाकी का पेपर कंटिन्यू करते हैं। इस मेथड से आपको कितना टाइम लगेगा पूरा अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन एंड थैंक यू फॉर